Hello friends, good morning to all of you and welcome back to my channel Study with Priya Sharma. If you have not subscribed my channel, so please go and subscribe my channel, like this video and share my channel link with your friend, relative, etc. and etc. If you like my channel, please comment and please give me notification that what type of videos do you want from me. I will make entertainment videos and also study videos for class 7 students and entertainment videos for all of you. So firstly today I am making study video, that is we are studying class 7 geography chapter number 4, that is environment. The first thing is, what is environment? Environment, you can remind from your mind that environment is our surroundings. Okay, what is our surroundings? Okay, our surrounding. You can, if anyone say what do you understand by environment or what is environment, so you can say environment is basically our surroundings. Okay, now in this chapter we have three parts of environment. First is natural environment, which is given by nature. You can take an example of plants. Okay, next is human environment. Human environment means religious communities, etc., etc. And in human made environment there are some vehicles, houses, buildings, towns, etc., etc. Okay, so in this chapter we have a story of Ravi, and we have three parts of environment that I told it to you now, and after that we will do its exercise. It is a very interesting subject. If you like my channel, so please subscribe to my channel, guys. And I want 50 subscribers. I do only have 24 subscribers. Please help me. Please give me 50 subscribers. So now go and bring your geography book of class 7th and study with me. After the long vacation, when Ravi started going to school, बहुत ही लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने अपने स्कूल जाना शुरू किया अगेन, यानी कि दोबारा, ही नोटिस दैट द ओनली प्ले ग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग्ड अप. उसने ये नोटिस किया कि सिर्फ एक प्ले ग्राउंड जो कि मेरे स्कूल के ही सामने था वो अब खोद रहा है, मतलब कि वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा. People said that a huge building with many flats will be constructed there. कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और बहुत सारे फ्लैट भी उसमें बनेंगे. कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनेंगे, ठीक है. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि जो था लगभग आंसुओं में ही था वो. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब उसको ये पता चला कि जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसकी सॉफ्ट ग्रास के साथ, मैरीगोल्ड वाले फ्लावर के साथ और बटरफ्लाइज के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है. He shared his feelings with his classmate. उसने अपनी ये फीलिंग अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर की. इन द असेंबली क्लास में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व. तो जो प्रिंसिपल था वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे और उन्होंने कहा कि सी हाउ अवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, देखो हमारा पर्यावरण कैसे चेंज हो रहा है. इन्वायरमेंट हिंदी मीनिंग इज पर्यावरण. ओके, Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends. In the class, Ravi asked his teacher. क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा, what is environment? Environment क्या है? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. तुम अपने आसपास जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो वो सब तुम्हारा environment है. रवि thought aloud. रवि ने सोचा
That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि मेरी स्कूल की जो बिल्डिंग है, वहाँ पे जो टेबल है, चेयर है क्लासरूम में, यहाँ तक कि जो ओपन फील्ड है यानी कि पूरा खुला मैदान है जहाँ, वो भी, और रोड भी, गार्बेज भी, मतलब कूड़ा भी, मेरे दोस्त भी, सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। और टीचर ने कहा यस, हाँ बिल्कुल सही, बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नेचर के द्वारा हमें दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लोथ्स एंड बुक्स। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं माउंटेन का, रिवर का, ट्री का एंड एनिमल का। और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो पीपल के द्वारा बनी हुई होती हैं। आप इनका एग्जांपल ले सकते हैं रोड्स, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब दो दो करके अपने साथ में वर्क करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अपने क्लासमेट के साथ एक लिस्ट बनाओ जो कि तुम्हारे साथ में बैठा हो, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर। नेचर के क्या क्या क्रिएशंस हैं, एंड बाय ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के क्या क्या क्रिएशन हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये यहाँ पे 5 बच्चे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिनका नाम है रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा और आशा। वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है? आज इकबल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये हमारी नीड्स के लिए यानी कि हमारी ज़रूरतों के लिए ही बदल रहा है। ये हमारी ज़रूरतों के लिए बदल रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दे रखे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट होते हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं एयर का, वाटर का, लैंड का और लिविंग थिंग्स का। ह्यूमन मेड में आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज़ का। और ह्यूमन में आप लोग ले सकते हैं इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन का। तो आगे अब हम बढ़ते हैं इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो रही हैं डे बाय डे। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding. कभी कभी हम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं किसी टाइम में और डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग को। नेचुरल सराउंडिंग में अगर आप लोग प्लांट का भी एग्जांपल ले, तो अगर हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है तो हम प्लांट्स को भी काटते हैं कभी कभार, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। हम लकड़ी को काटेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो यानी कि हम नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। द टीचर रिप्लाइड, from the above conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. You have to learn this definition that the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment. ऊपर की जो बातों से हमने पता लगाया है कि कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी जगह, कोई ऐसे इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि और कोई भी ऐसा नेचर जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ये एक कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, जहाँ तक कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंडीशन में एग्जिस्ट करता है अर्थ में। अब बात आती है बायोटिक और एबायोटिक, हम कहते हैं किसको है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ये बायोटिक एंड एबायोटिक वाला दे रखा है फीचर। तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। बायोटिक हम उसको कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग कहते थे, वैसे ही लिविंग होगा बायोटिक में, अनलिविंग होगा नॉन लिविंग होगा एबायोटिक में। ठीक है, बायोटिक का एग्जांपल भी ले सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, यू नो दैट। एंड एबायोटिक का एग्जांपल ले सकते हैं लैंड या बिल्डिंग्स, कुछ भी ले सकते हैं आप, एज यू नो। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं इसके आगे पढ़ने। इसके आगे में हमें यहाँ पे दे रखा है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़
क्रिएशन और इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग। अब आप लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट आखिर है क्या। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बताई जाती है, उनके क्रिएशंस बताए जाते हैं और उनके इंटरेक्शंस बताए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो भी आप लैंड देखते हो, वाटर देखते हो, एयर देखते हो, प्लांट देखते हो, एनिमल होता है, एनिमल देखते हैं, वो कोई इंसान तो नहीं बनाता ना। इंसान तो नहीं बना सकते किसी एनिमल को, या एक इंसान एक दूसरे इंसान को तो नहीं बना सकता, लेकिन ये नेचर से द्वारा हमें मिलती हैं, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तुम्हें पता ही होगा, जैसे तो मुझे पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर और बायोस्फीयर किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन। इन डोमेन्स के बारे में हम एक बारी और थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. आप लोग समझ ही गए होंगे कि लिथोस्फीयर एक ऐसा सॉलिड क्रस्ट है, हमारे अर्थ की हार्ड टॉप लेयर भी है, जो कि रॉक्स यानी कि पत्थर और मिनरल से बनती है, और वो एक बहुत ही मोटी सॉइल की लेयर से कवर अप होती है। ये एक इरेगुलर सरफेस है जिसके पास बहुत सारे लैंडफॉर्म हैं, जिनको हम माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज की कह सकते हैं। लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट। लैंडफॉर्म जो होते हैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट में फाइंड होते हैं, और या फिर ओशन फ्लोर में भी होते हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर ऐसा डोमेन है जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट मीन जंगल, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ह्यूमन के रहने के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये मिनरल वेल्थ का भी एक सोर्स है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब जो वाटर का डोमेन होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। ये हमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाटर दिखाता है, मतलब वाटर के सोर्सेज दिखाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज दिखाता है हमें। जैसे कि तो पता ही होगा आप लोगों को, रिवर, लेक्स, सीज, ओशन, इनकी वाटर बॉडीज होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होती हैं। पानी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वाटर बॉडीज़ भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ही होंगी हमारे लिए। अब बात आती है हमारे एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर हम उसको कहते हैं जो हमारी अर्थ को एक लेयर ऑफ एयर में सराउंड करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर में ही होल्ड होती है, मतलब एटमॉस्फेयर में ही रहती है। इट प्रोटेक्ट्स दी फ्रॉम द It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. ये हमें बहुत ही ज़्यादा harmful rays या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी से बचाती है। It consists of a number of gases. उसके पास कुछ number of gases होती हैं, dust and water vapor भी होते हैं। The changes in the atmosphere produce changes in the wealth and climate. जब इसमें एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है तो आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोग बीमार पड़ते हैं तो कोई मम्मी या फिर आपके घर में कोई बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक चेंज है, ये तो पर्यावरण ही बदल रहा है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक चेंज जब प्रोड्यूस होता है तो वेदर और क्लाइमेट दोनों ही चेंज हो जाते हैं। वेदर मीन्स आप लोगों को पता ही होगा, और क्लाइमेट भी पता होगा। वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं जब हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो इसी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं कभी कभार। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट या फिर एनिमल का किंगडम होता है वो दोनों मिलकर बायोस्फीयर को बनाते हैं, एक लिविंग वर्ल्ड। ये एक नेचुरल जोन होती है हमारी अर्थ की, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों साथ में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, तो सपोर्ट लाइफ के लिए, मतलब कि लाइफ क्या कहते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए। अब बात आती है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में हमें बताया गया एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग। एक एनसीसी कैंप में रवि की जो क्लास थी वो अटेंडिंग
रवि अपनी क्लास को अटेंड कर रहा था। जैसे ही ने एक्सक्लेम्ड किया, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला। ये कितना भारी डाउनपोर है, इसने तो मेरे को मेरे केरला वाली घर की याद दिला दी। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें याद आएगा जब तुम मेरे घर आओगे केरला में। यू शुड कम, तुम्हें आना चाहिए, और फिर तुम लोग देखोगे कि कितना वो पोर होता है, पोर होता है और पोर होता है हमारे लश वाले ग्रीन फील्ड में और कोकोनट प्लांटेशन में। हीरा फ्रॉम जसमीत एक्सक्लेम्ड, हीरा और जसलीमर जो होते हैं वो एक्सक्लेम्ड हो जाते हैं, और वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली किकार एंड सैंड। हमें कभी भी रेन देखने को नहीं मिली भाई, हमें तो सिर्फ किकार और सैंड ही दिखने को मिली है, और हमारी आँखें भी नहीं ढूंढ पाती हैं। लेकिन तुमने तो कैमल को भी ढूंढ लिया, सैड रवि ने बोला। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन होते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट। अगर सिर्फ कैमल नहीं, अगर तुम हमारे डेजर्ट को भी विजिट करोगे, तो तुम्हें दिखेगा वहाँ पे कोई स्नेक भी होंगे, लिजर्ड भी होंगे, लिजर्ड मीन्स छिपकली, और कुछ इंसेक्ट भी दिखेंगे तुम्हें। और रवि भी आश्चर्यचकित हो गया। और क्यों एनिमल्स, क्यों? द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों? जो लोग होते हैं वो भी तो एक दूसरे प्लेस पे जाते हैं, और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या सब एक दूसरे से रिलेटेड है? तो हाँ, टीचर ने बोला हाँ, वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा सही बात कही। ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सारे जो प्लांट होते हैं, सारे एनिमल होते हैं वो, और ह्यूमन बीइंग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक इमीडिएट सराउंडिंग के लिए। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। इसके को हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? क्या तुम्हें लगता है कि जो रवि अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था पार्क में, क्या वो इकोसिस्टम कहलाता है? तो इकोसिस्टम की आप एक और डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, दैट आई विल टेल टू यू कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आप ऐसे करके बीच में कुछ याद कर सकते हैं, जैसे कि दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली। ठीक है, यहाँ से आप लोग लर्न करेंगे इसमें दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम तक आप लोग इसको लर्न करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि वो अपने इंटरेक्शन को दिखाते हैं, तो इसमें इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारी एक्सरसाइजेज। तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज यहीं पे क्लियर करा देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें नेचुरल इकोसिस्टम से नहीं मिली है? डेजर्ट तो हमें नेचर से मिला है, किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है भाई। फॉरेस्ट भी हमें फॉरेस्ट भी हो सकता है, इसका आंसर दो हो सकते हैं, क्योंकि नहीं, फॉरेस्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि फॉरेस्ट में हमें प्लांट्स दिए गए होते हैं, ग्रास दी गई होती है, वो इंसान थोड़ी ना बना सकता है उसको। लेकिन एक्वेरियम इज अ थिंग विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो फर्स्ट का आंसर होगा एक्वेरियम, बी ऑप्शन। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? रिलीजन तो है भाई, कम्युनिटी भी है, लेकिन लैंड नहीं है। लैंड है नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे लैंड में। विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है? इसमें से माउंटेन तो नहीं है, सी भी नहीं है, रोड है। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेकार बात क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर? कैन यू रिकॉल इट? अगर आप लोगों को बायोस्फीयर का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने सही गेस किया था या नहीं। इसका आंसर आएगा ई वाला, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट में आएगा ई, फर्स्ट आएगा ई। एटमोसफेयर का आएगा ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर तो आप लोगों को पता ही होगा, डोमेन ऑफ वाटर एंड इन्वायरमेंट अवर सराउंडिंग होगा।
आवर सराउंडिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। सो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का आंसर फाइंड करने के लिए जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग इकोसिस्टम का आंसर लगाएंगे। मैं पेज नंबर बता देती हूँ पहले आप लोगों को। पेज नंबर तो इसमें 5th है, पेज नंबर है 5th। आप अपनी बुक का पेज नंबर 5th ओपन करेंगे, उसमें आप लोगों को पैराग्राफ दिख रहा होगा सबसे ऊपर वाला, उस सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे का आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड के आंसर पे। सेकंड का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट से तुम क्या समझ सकते हो? तो आप लोग इसमें लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मेड बाय नेचर कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट इज कॉल्ड अ नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो गया हमारा। एंड थर्ड का आंसर होगा विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के क्या 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं? विच आर द मेजर, अच्छा हाँ, इन्वायरमेंट के क्या क्या मेजर कंपोनेंट है वो आप लोगों को लिखने हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मैंने आप लोगों को बताया था। फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड लिखेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट, थर्ड लिखेंगे ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के हमें 4 एग्जाम्पल देने हैं। तो इसके आप देख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बिल्डिंग, पार्क, व्हीकल और रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर का भी यहाँ पे हमने देखा था। एंड यहाँ पे से हम लोग कर लेंगे इसको। वेयर इज लिथोस्फीयर? ये दिस इज लिथोस्फीयर। पेज नंबर 3 पे आप लोग जाएंगे एंड वहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा यहाँ पे लिथोस्फीयर एक दूसरे कलर से लिखा होगा। वहाँ से लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रिस्टल हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ से आप लोग लिखेंगे थिन लेयर ऑफ सॉइल तक। ये आंसर हो जाएगा हमारा व्हाट इज लिथोस्फीयर का। ठीक है, नेक्स्ट इज which are the 2 major component of biotic environment? Biotic environment means the world of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई भी 2 हो सकते हैं, कि आप प्लांट्स एंड ह्यूमंस भी लिख सकते हैं, प्लांट और एनिमल भी लिख सकते हैं। वैसे प्लांट एंड एनिमल ज़्यादा लिख सकते हैं आप लोग, तो मैंने भी वही लिखा है, आप लोग भी प्लांट एंड एनिमल लिख सकते हैं। व्हाट इज़ बायोस्फीयर? अब बायोस्फीयर की बात आती है, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। तो आप लोग 4th पेज नंबर निकाल लीजिए, उसमें आंसर आएगा हमारा व्हाट इज़ बायोस्फीयर का। यहाँ पे आप लोगों को बायोस्फीयर बोल्ड वर्ड में लिखा दिखेगा, तो यहाँ पे आप लोग करेंगे प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ तक करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ बायोस्फीयर का। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे आंसर सारे कंप्लीट हो सकते हैं। गिव रीजंस के हम आंसर नहीं लिखते हैं। एंड एक्टिविटी हम कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पे आपको एक आइडियल इन्वायरमेंट को इमेजिन करना है जहाँ पे आप लोगों को रहना पसंद हो। तो आप लोगों को वही पिक्चर बनानी है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, वरना आप लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 4, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इन्वायरमेंट। तो यहीं पर खत्म हो गई हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो लोग क्लास 7 में पढ़ते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।